एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर। ओके, सो चलिए देखते हैं आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर क्या है। ठीक है, सो ये दिस इज यूज्ड ओनली इन आवर स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है ये। सो आवर डेफिनेशन इज लेट A be a square matrix. Okay, square matrix of order n by n. Okay, then number lambda is called eigenvalue. Okay, eigenvalue of matrix A. If there exists a column matrix, there exists a column matrix X, okay, of order n by 1. Okay, this is the column matrix such that this is written as Ax is equals to lambda x. Okay, so यहाँ पे A है क्या ना, यहाँ पे A is a square matrix of order n by n and lambda is called eigenvalue of the matrix A. Okay, and so here we take a there exists a column matrix that is X with order n by 1, that is column matrix. Okay, so that the next this is written as Ax equals to lambda x. Okay, so here lambda is called eigenvalue. Okay, and here x is called eigenvector and A is the matrix. Okay, clear? So that here we write Ax minus lambda x equals to 0. Then we write this as take common x, then A minus we write this as lambda I. Okay, I means identity matrix. Okay, this one equals to 0. ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है A माइनस लैम्डा आई, इसको हम कहेंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखिए यहाँ पे x इज नॉट इक्वल्स टू 0, x कभी भी इक्वल्स टू 0 नहीं होगा क्योंकि x इज ए आइजन वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है A माइनस लैम्डा आई, दिस इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन. Okay, I hope all are clear. Okay, so yes, so degree of the characteristic polynomial, degree of characteristic equation is equals to order of the matrix A. Okay, order of matrix A. So how we find the value of lambda means how we find eigenvector, then eigenvalue, then eigenvector. Okay, so अब eigenvalue का eigenvector होता है. ठीक है, each eigenvalue has eigenvector. Okay, so चलिए देखते हैं इसका वर्किंग रूल क्या है. ठीक है, इसका प्रोसीजर टू फाइंड eigenvalue and eigenvector. Okay, so फास्ट मेथड क्या है ना, sorry, procedure to find eigenvalue and eigenvector. ठीक है, तो चलिए देखते हैं फास्ट आपका क्या है ना, आपको सॉल्व करना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. सॉल्व योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट इज हाउ A माइनस लैम्डा I इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो यहाँ पे आपका आइजन वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू आपको आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, इफ A इज ऑफ nth ऑर्डर देन नंबर ऑफ आइजन वैल्यू आर n. ओके, इसका A का ऑर्डर जो है आइजन वैल्यू भी उतना ही आएगा, मतलब ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइजन वैल्यू. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं जो लिखा है यहाँ पे डिग्री ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. सो यू नो दैट कि डिग्री ऑफ द इक्वेशन का डिग्री जो भी है उसका रिजल्ट में जो मतलब जो सॉल्यूशन में आएगा उतना ही सॉल्यूशन आएगा.
मतलब डिग्री 2 है तो सोल्यूशन आपका 2 आएगा, वही है ना। इस तरह ही आपका ऑर्डर ऑफ ए मीन्स ए का ऑर्डर जो भी है उतना ही नंबर ऑफ आइजन वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड में क्या करना है, देखिए यहाँ पे हाँ, फॉर ए स्पेसिफिक आइजन वैल्यू, फॉर ए स्पेसिफिक आइजन वैल्यू lambda I, okay, solve homogeneous system of equation means you put a minus lambda I with I x equals to 0, and from here you find the value of x, okay. So the x is your eigenvector, okay, clear. I repeat it. First you solve the characteristic equation, that is your a minus lambda I is equals to 0, okay. So here the number of eigenvalue is equals to order of the matrix, okay. So order matrix का order जितना होगा lambda का value उतना ही आएगा, ठीक है। सेकंड में क्या है ना, for the specific eigenvalue you put this eigenvalue in the characteristic equation, then you find the value of x, that is your eigenvector, okay, clear। तो चलिए इसको एक एग्जांपल सॉल्व करने के पहले से मैं और एक बता दूंगी। यहाँ पे आपका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, ठीक है। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है ना, यहाँ पे आइजन वैल्यू लैम्डा is the order of eigenvalue as the root of characteristic polynomial. Let इसका मतलब क्या है ना, let आपको lambda equals to, मतलब इसका मतलब क्या है ना, lambda का जो भी वैल्यू निकला है वो रिपीट होगा, मतलब आपको lambda का वैल्यू मिल जाएगा क्या 2 and 2 सॉरी 3 and 3, ठीक है। तो यहाँ पे अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 क्या हो जाएगा 2, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 3 इज 2, ओके। मतलब लैम्डा का वैल्यू जितना रिपीट होगा उतना ही आपका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी होगा, ठीक है। मतलब आपको मिलेगा कि लैम्डा इक्वल्स टू 3 and 2 1, वही मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 क्या होगा 1 होगा, क्योंकि एक ही 2 है यहाँ पे और एक ही 1 है यहाँ पे। सो इसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आ जाएगा और 2 का भी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आ जाएगा। बट 3 का मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, देखिए यहाँ पे 3 कितना है 2 3 है, इसलिए अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 3 इज 2, ओके। समझ आ गया। सो नेक्स्ट चलिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग ये है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज द नंबर ऑफ आइजन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा, मीन्स लैम्डा को लेके जो भी आपका मिलेगा क्या अलजेब्रिक लैम्डा को करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा यू विल फाइंड आइजन वेक्टर, ओके। तो जितना आपका आइजन वेक्टर आएगा वो ही होगा आपका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ओके। मतलब यहाँ पे देखिए लैम्डा का वैल्यू आ गया, यहाँ पे जो 3 है ना इसको मैं लेके बताऊंगी। यहाँ पे 3 and 3 है, बट यहाँ पे लैम्डा को 3 लेके आपको एक ही आइजन वेक्टर आएगा, वही है ना। एंड अल्फा लैम्डा इक्वल्स टू अगेन 3 लेके भी वही वेक्टर आएगा, एक ही वेक्टर आएगा। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 3 इज ओनली 1 नॉट 2, ठीक है। तो लैम्डा के लेके जितना भी एक ही लैम्डा का वैल्यू लेके जितना भी आपका क्या आइजन वेक्टर निकलेगा वही होगा आपका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। मतलब आप एक लैम्डा इक्वल्स टू 2 लेके 2 निकलेंगे, 2 आइजन वेक्टर निकलेंगे। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 2 इज 2, ओके। आप एक ही आइजन वेक्टर का आइजन वैल्यू के लेके बहुत सारा आइजन वेक्टर निकल सकते हो, बट यहाँ पे हमारा जो कोर्स है यहाँ पे हम ओनली 1 वैल्यू के लिए ओनली 1 आइजन वैल्यू के लिए ओनली 1 आइजन वेक्टर निकालना है।
तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑलवेज 1 ही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल है a इज इक्वल्स टू 8 -4 2 and 2। ओके, ये आपका हो गया एक मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फाइंड आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हमको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब क्या है ना, a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0, ये है ना। ठीक है, तो यहाँ पे चल लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, a का मतलब 8 -4 2 2। ठीक है, माइनस लैम्डा इंटू यहाँ पे आई क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट इज दिस वन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए 8 -4 2 2। तो यहाँ पे लैम्डा है स्केलर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सब एलिमेंट में, लैम्डा 0 0 लैम्डा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये दोनों मैट्रिक्स को माइनस करो तो क्या आएगा, 8 माइनस लैम्डा, यहाँ पे होगा -4, यहाँ पे हो जाएगा 2 देन 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, तो ये हो गया आपका 0। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, इसका डिटर्मिनेंट हमको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, इसको हम लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, दिस वन इक्वल्स टू 0। तो इसको निकाल लो तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 8 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा, देन माइनस, यहाँ पे माइनस भी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए 16 ये आ गया, देन -8 लैम्डा, देन -2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको लैम्डा स्क्वायर को आगे ले जाइए, देन ये हो गया आपका 10 लैम्डा, देन यहाँ पे 16 प्लस 8 आपका क्या आ जाएगा, हाँ देखिए इसको हम और भी, हाँ यहाँ पे 24 हो गया, वही है ना। तो नेक्स्ट इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे ना, तो फैक्टराइज करके ऐसे करेंगे 6 and 4 से, 6 लैम्डा -6 लैम्डा -4 लैम्डा, सो आपका आ जाएगा लैम्डा -4 एंड लैम्डा -6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका लैम्डा का वैल्यू निकल गया 4 and 6। तो देखिए यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना, इसका ये हो गया आपका इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन का डिग्री क्या है, यहाँ पे 2 है ना, सो इसका ऑर्डर, सॉरी लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। और यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 है, हो गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये जो लैम्डा का वैल्यू के लेके हम क्या निकालेंगे, आइजन वेक्टर। ठीक है, सो लैम्डा का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 4 and 6। सो फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 4, ओके, देन आपको निकालना क्या है, इक्वल्स टू 0, यहाँ पे पुट करना होगा लैम्डा का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए ए की जगह क्या है ना, 8 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा यहाँ पे है, सो 8 माइनस लैम्डा की जगह 4 पुट करेंगे, देन यहाँ पे क्या है, 2 -4 यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे क्या है 2 माइनस लैम्डा मतलब 2 -4। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू 0 नहीं, यहाँ पे हम क्या करना है, ए माइनस लैम्डा आई, यहाँ पे x मल्टीप्लाई करना है, वही है ना, x इक्वल्स टू 0, वही करना है हमको। सो ये आ गया आपका, यहाँ पे मैट्रिक्स लिखना है, देन x की जगह क्या है, यहाँ पे आपका x1 x2 ले जाओ, यहाँ से क्या होगा, x1 एंड x2 इक्वल्स टू 0 0 लिख सकते हो। ओके, तो अभी क्या करना है, इसको यहाँ पे 8 -4 होगा आपका 4, फिर -4 2 2 -4 होगा आपका -2। ठीक है, सो मल्टीप्लाई विथ x1 x2, देन आपका आ गया 0 and 0। यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स है, इसलिए हम कॉलम मैट्रिक्स की तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 4x1 माइनस 4x2, देन यहाँ पे आएगा 2x1 माइनस 2x2। आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आता ही है ना, तो उसी तरह से आपको करना है। तो ये इक्वेशन इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे देखिए 4x1
माइनस 4x2 इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ पे भी इक्वेशन सेम ही है दोनों से, इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है ना, x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0 एंड x1 इक्वल्स टू x2, वही है ना, x1 इक्वल्स टू x2 हो गया। तो इसको हम लेंगे क्या, लेट दिस इक्वल्स टू k, ठीक है। तो हम x की जगह क्या है ना, हमारा कॉलम मैट्रिक्स क्या है, x1 एंड x2। तो x एंड x2 के इक्वल्स टू हम k ले गए हैं, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, k, एंड x2 की जगह पुट करेंगे ऑल्सो k। तो यहाँ पे इफ वी टेक k इक्वल्स टू 1, देन आपका वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 एंड 1, ठीक है। समझ आ गया, आपको ऐसे ही करना है। मतलब यहाँ पे देखिए फास्ट क्या करना है ना, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे करके सॉल्व करना है, मतलब a माइनस लैम्डा आई आप डायरेक्ट इससे कन्वर्ट करके कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू आ गया है, ठीक है। देन लैम्डा का वैल्यू लेके आपको कहाँ से पुट करना है, इसी इक्वेशन में पुट करना है, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसे पुट करके x से मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन निकल गया। देन ये आ गया आपका फास्ट वेक्टर, आइजन वेक्टर, ठीक है। देन लैम्डा इक्वल्स टू 6 लेके करना है, सॉल्व करना है। लैम्डा इक्वल्स टू लेट नहीं, लैम्डा इक्वल्स टू 6 आ ही गया है आपका। तो यहाँ पे क्या है ना, 8 माइनस 6 है ना, 8 माइनस 6, देन यहाँ पे आपका -4 है ना, -4, देन यहाँ पे 2 है, देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 2 माइनस लैम्डा, सो लैम्डा का वैल्यू 6 है, 2 माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स लेके मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, x1 x2 इक्वल्स टू 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 माइनस 6 होगा 2, -4 2, ये आ गया -4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना होगा x1 एंड x2 के साथ। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2x1 माइनस 4x2 इक्वल टू 0, बोथ आर सेम इक्वेशन, हो गया ना, both are same equation, so that we only solve only one equation, that is equals to 4x2। इसका मतलब क्या है ना, x1 equals to 2x2, वही है ना। तो इसको हम ले जाए k, यहाँ पे हम इसको k1 ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट है इसलिए k1 ले जाओ, इसको ले जाओ k2, ठीक है। तो x में क्या आएगा, यहाँ पे x1 x2 वही है ना, तो x1 की जगह क्या पुट करोगे, k2, x2 की जगह क्या पुट करोगे, क्या होगा, x2 इक्वल्स टू k2/2, ठीक है। यहाँ पे k2/2 पुट कर लो। और इसको भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ना, देखिए इसको भी हम लिख सकते हैं x1/2 इक्वल्स टू x2, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं। तो दिस वन इक्वल्स टू k2 ले जाओ, यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया है इसलिए इसको फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शन हटा दीजिए, हटा के हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे इसको k2 ले जाओ, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए x1 की जगह क्या लिखेंगे, 2k2, ठीक है। x2 की जगह क्या होगा, ओनली k2, वही है ना। तो यहाँ पे ऑल्सो टेक k2 इक्वल्स टू 1, सो आपका क्या हो गया, 2 एंड 1 हो गया आपका वेक्टर 2। सो x1 वेक्टर आपका क्या आया है, यहाँ पे 1 एंड 1, वही है ना, 1 एंड 1, एंड x2 वेक्टर आपका क्या आ गया, 2 एंड 1, ठीक है। ये आपका आ गया आइजन वेक्टर। सो फॉर आइजन वैल्यू 2 के लिए 2 नहीं था, आपका 4 आया है यहाँ पे ना। तो आइजन वैल्यू 4 के लिए आपका आइजन वेक्टर 1 1 आ गया, एंड आइजन वैल्यू 6 के लिए आपका आइजन वेक्टर आ गया 2 एंड 1, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए, ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल, समझ गए हो। और कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए, ठीक है। तो मेरा स्लाइड खत्म हो गया, तो मैं और एक स्लाइड बना के आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो आपका हो गया क्या, एक क्वेश्चन, देन और एक क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे कैसे ना, क्या सॉल्व करें ना, हम जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाले ना, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आपका एक मैट्रिक्स है जो कि A इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 2, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है ना, यहाँ पे 0 2 एंड 1, और यहाँ पे है -1 2 एंड 2, ठीक है।
ये हो गया आपका एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन द अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। ओके, डिटरमाइन अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो आपको फास्ट क्या करना है, वही लैम्डा एंड लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा कैसे निकालोगे, फास्ट आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुट करना होगा। सो मैं डायरेक्टली कर देती हूँ यहाँ पे, देखिए 1 माइनस लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका डायगोनल है वहाँ से हम ओनली लैम्डा माइनस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आई है वो ओनली डायगोनल एलिमेंट में है, वही है ना। यहाँ पे 2 2 देन 0 2 माइनस लैम्डा, यहाँ पे हो गया 1 -1 2 देन 2 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम 0, ओके। तो ये इक्वेशन से कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, क्या होगा देखिए, इसको कांस्टेंट लेके यहाँ पे हो गया 2 माइनस लैम्डा स्क्वायर -2, ओके। देन -2 ओके, यहाँ पे हो गया 0 प्लस मल्टीप्लाई, आप लोगों को तो डिटर्मिनेंट आया है ना, तो +2 0 माइनस एंड माइनस है यहाँ पे, तो प्लस हो गया 2 माइनस लैम्डा, ठीक है। दिस वन इक्वल्स टू 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए, इसको सॉल्व कर दो तो क्या होगा, 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -2 माइनस यहाँ पे हो गया 2 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 4 माइनस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा देखिए, ये होगा लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा, ये होगा आपका क्या 2 -2 + 4 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। देन -2 लैम्डा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए 1 माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा +2, ये है ना, यहाँ से आप कॉमन ले जाओ, क्या 2 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, सॉरी 1 प्लस लैम्डा हो गया ना, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा क्या ना, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी हो गया है यहाँ पे। तो हम कैसे लिखेंगे, ये आपका ऐसे आ जाएगा, इस टाइप ऑफ इक्वेशन के आ जाएगा। इसको मैं और भी सॉल्व करूँगी तो ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको टास्क है, इसके बाद फाइनली इसका आंसर आ गया लैम्डा -1 इंटू लैम्डा -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, और बोथ 2 यहाँ पे स्क्वायर है ना, मतलब 2 and 2 आएगा, बोथ 2 and 2, ठीक है। सो यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू 1 का तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या आएगा 1 ही आएगा, तो इसको लिखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ओनली इसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी लिखना है। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 2 इज कितना होगा 2, बिकॉज ये 2 टाइम रिपीटेड हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए इसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा 2 ही होगा, ठीक है। तो चलिए इसका साथ करेंगे क्या, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। मतलब इसका अलजेब्रिक आइजन वैल्यू निकल गया, आइजन वेक्टर निकलना है। सो लैम्डा इक्वल्स टू 1 लेके 1 ही आया है ना, 1 and 2 2 निकाला है। सो 1 लेके हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 देन 2 आ गया है यहाँ पे, और 0 2 माइनस 1 देन 1 -1 2, यहाँ पे होगा 2 माइनस 1, ठीक है। इसको मैट्रिक्स की तरह लिखना है, क्योंकि हम अभी क्या निकालेंगे आइजन वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे 0 0 0 लिख दीजिए। यहाँ पे क्या होगा देखिए, ये आ गया आपका 0 2 and 2, देन ये हो गया 0 1 and 1, देन ये हो गया -1 2 and 1, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, x1 x2 x3 के साथ, दिस वन इक्वल्स टू 0 0 and 0, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आ गया, फर्स्ट क्या है यहाँ पे 0 है, तो सेकंड क्या है 2x2 + 2x3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सेकंड में क्या है x2 + x3 इक्वल्स टू 0, थर्ड में क्या है ना -x1 + 2x2 + x3 इक्वल्स टू 0, वो हो गया। तो ये इक्वेशन को हम सॉल्व करना है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो x2 का वैल्यू क्या हो गया -x3, वो है ना। सो यहाँ पे पुट कर लो -x1 प्लस 2x2, तो x2 की जगह क्या पुट करना है, सो x3 की जगह -x2 पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, को एक -x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है x1 इक्वल्स टू x2। तो ये दोनों को कंबाइन करके लिख देते हो तो क्या आएगा, x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू -x3, वो है ना, x1 इक्वल्स टू x2 देन x2 इक्वल्स टू -x3, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको हम क्या करना है, यहाँ पे x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू -x3 इक्वल्स टू k ले जाओ, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x इज इक्वल्स टू आपको क्या आएगा, x1 x2 एंड x3, वो है ना। सो x1 की जगह क्या पुट करेंगे हम, k, x2 की जगह क्या पुट करेंगे, वही k, x3 की जगह यहाँ पे -x3 इक्वल्स टू k है, सो यहाँ पे -k पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है ना, लेट k इक्वल्स टू 1, सो आपका क्या होगा 1 1 एंड -1, ये आ गया आपका वेक्टर। इसके लिए इफ यू पुट लैम्डा इक्वल्स टू 1 देन आपका वेक्टर हो गया 1 1 एंड -1, ठीक है। तो इसका कोई अलजेब्रिक ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा रिपीट नहीं है, ओनली सिंगल ही वैल्यू है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा की जगह 2 पुट कर लो तो क्या होगा, आएगा यहाँ पे 1 - 2 देन 2 एंड 2, देन यहाँ पे होगा 0 2 माइनस लैम्डा की जगह 2 पुट करना है, देन यहाँ पे हो गया 1 देन -1 2 देन ये आ गया 2 - 2 ऑल्सो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, x1 x2 x3 के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा क्या 0 0 एंड 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे 2 एंड 2 देन 0 0 एंड 1 देन -1 2 एंड 0, ओके। देन मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, x1 x2 एंड x3 के साथ इक्वल्स टू 0 0 एंड 0, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 0, ओके। सेकेंड में क्या आएगा, x3 इक्वल्स टू 0, देन लास्ट में क्या होगा -x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे देखिए x3 इक्वल्स टू 0 निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x1 की जगह क्या पुट करेंगे हम, x1 इक्वल्स टू 2x2 आएगा, वो है ना। सो यहाँ पे देखिए तो ये तो 0 हो गया ना, तो यहाँ पे हम इसको k ले जाए, ठीक है। तो यहाँ पे x2 की जगह क्या पुट करेंगे हम, x1 x2 एंड x3, वही हमको पता है, ठीक है। तो x1 की जगह पुट करेंगे k, हाँ देखिए यहाँ पे जो 2x2 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 x1 इक्वल्स टू x2, क्योंकि यहाँ पे हमको फ्रैक्शन नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x1 की जगह क्या लिखेंगे हम 2k, ठीक है। देन x2 की जगह लिखेंगे ओनली k एंड x3 तो आपको आ जाएगा क्या 0, ठीक है। तो यहाँ पे k के जगह 1 ले जाओ तो क्या होगा आपका 2 1 एंड 0 होगा आपका क्या हो गया, ये आइजन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए कितना आइजन वेक्टर आया है, ओनली 1 ही आइजन वेक्टर आ गया है। तो इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 2 इज 1, ओके। लैम्डा का वैल्यू जहाँ पे रिपीट है ना, वहाँ से हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी निकलना है, ठीक है। और जो रिपीट नहीं हुआ है वहाँ से कोई ज़रूरत नहीं उसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए, समझ आ गया। तो ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए हाँ, यहाँ पे तो आपका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आ गया 1, बट आप एक अदर क्वेश्चन लेंगे जहाँ पे कि आपका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि a इक्वल्स टू 2 1 1 1 2 1, देन यहाँ पे आएगा 0 0 एंड 1, ठीक है। यहाँ पे चलिए करते हैं, देखिए तो कैसे आएगा आपका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2, ठीक है। तो फास्ट आपको क्या करना है, a माइनस लैम्डा i इक्वल्स टू 0 लेना है, वही है ना।
सो यहाँ पे 2 माइनस लामडा 1 एंड 1, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस लामडा में डायरेक्टली क्यों पुट कर रहे हो पता है ना, यहाँ पे आई हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स ओनली 1 1 1 है। देन लामडा मल्टीप्लाई करने से सब लामडा 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 हो जाएगा, एंड माइनस करने से क्या होगा, ये जो डायगोनल एलिमेंट है वही ओनली चेंज होगा, एंड अदर एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे 0 है ना, इसलिए अदर एलिमेंट सेम होगा। जहाँ पे आएगा 2 माइनस लामडा, देन सॉरी यहाँ पे 1 होगा, देन 0 0 1 माइनस लामडा हो गया। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट हमको चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये हो गया, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस लामडा 1 माइनस लामडा, ये 0 हो गया, माइनस 0 हो गया, देन माइनस 1 होल इंटू ये होगा आपका 1 माइनस लामडा, देन ये हो गया 0। ठीक है, यहाँ पे खत्म, देन यहाँ पे 1 है, देन ये 0 0 वो 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ गया, 2 माइनस लामडा, यहाँ पे भी हो गया 2 माइनस लामडा 1 माइनस लामडा, तो यहाँ पे होगा क्या, माइनस 1 माइनस लामडा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 1 माइनस लामडा कॉमन ले आओ, तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 2 माइनस लामडा 2 माइनस लामडा, देन क्या आएगा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ पे मेरा, हाँ, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा ना, इसको आप सॉल्व कर लो अच्छे से। ठीक है, आपको मिलेगा क्या, 1 माइनस लामडा, देन आएगा आपका लामडा माइनस 1 लामडा माइनस 3, इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा। ठीक है, सॉल्व करने का टास्क आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए, देन इसके बाद लामडा का वैल्यू क्या आएगा, देखा है, देखिए फर्स्ट क्या है ना, 1 माइनस लामडा इक्वल्स टू 0 होगा, तो मतलब लामडा की वैल्यू 1 आ गया। सेकेंड में भी लामडा का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, देन थर्ड में लामडा का वैल्यू क्या होगा, 3। ठीक है, तो यहाँ पे अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लामडा इक्वल्स टू 1 निकलना है, क्योंकि 1 रिपीट हुआ है 2 टाइम्स। ठीक है, क्या होगा, तो इसके लिए 3 होगा, तो इसका कुछ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी नहीं है, क्योंकि ये तो 1 ही है ना, इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब जो रिपीट होगा उसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी लिखना जरूर है। ठीक है, तो चलिए इसका क्या निकालेंगे, अलजेब्रिक सॉरी आइजन वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ इस तरह, देखिए लामडा इक्वल्स टू 1 के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे है 2 माइनस, हाँ, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी आप लामडा इक्वल्स टू 1 के लिए निकलना है। ठीक है, 2 के लिए भी निकल सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं लामडा इक्वल्स टू 1 के लिए क्या होगा, यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ पे तो क्या होगा, लामडा की जगह 1 पुट कर डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ मैट्रिक्स, जो कि 1 1 देन 1 देन 2 माइनस 1 होगा आपका 1 1। ठीक है, 0 0 1 माइनस 1 हो गया 0। इसको मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, x1 x2 x3 के साथ, देन यहाँ पे क्या आएगा 0 0 0। ठीक है, तो ये दोनों आपका रो सेम है ना, तो इसको हम क्या करेंगे ना, ओनली 1 ही एलिमेंट आएगा, सॉरी इक्वेशन आएगा। ठीक है, आगे क्या आया है यहाँ पे, x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू सॉरी x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू क्या आया है, 0। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x1 इक्वल्स टू माइनस x2 माइनस x3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, x2 एंड x3 आर आर्बिटरी, so we arbitrarily choose x2 equals to 0 if x2 equals to 0 and x3 is not equals to 0, means x3 is any arbitrary element। ठीक है, तो यहाँ पे x1 का मतलब क्या हो जाएगा, x1 equals to माइनस x3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आइजन वेक्टर कितना आएगा, देखिए यहाँ पे x1 x2 एंड x3 लिखना है, यहाँ पे एक ही इक्वेशन आया है, इसलिए इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एक को 0 ले जाओ देन आप निकल सकते हैं, वही है ना। सो x1 आपका आ गया क्या, माइनस सॉरी इसको हम ले जाएंगे क्या k, सो x1 आपका आ गया क्या k, देन x2 आपको 0 ले गए हो यहाँ पे, x3 इक्वल टू 0, सो दैट यहाँ पे 0 लिख दीजिए, एंड x3 क्या होगा यहाँ पे माइनस k, क्योंकि यहाँ पे माइनस x3 इक्वल्स टू k है। ठीक है, तो k के जगह 1 ले जाओ तो क्या आएगा आपका 1 0 एंड माइनस 1। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन लिए हैं हम, x1 इक्वल्स टू माइनस x2 माइनस x3, तो यहाँ पे हम फास्ट लिए हैं क्या x2 इक्वल्स टू 0
एंड x3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम एक आइजनवेक्टर निकल गए, ठीक है। इफ यू टेक x2 is not equals to 0 but x3 equals to 0, ठीक है। Here you take if x2 is not equals to 0 but x3 is equals to 0, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे x1 equals to, हम यहाँ से क्या निकाले हैं, इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा x3, जब x3 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा x1 equals to माइनस x2, इसको हम लेंगे k। तो यहाँ पे x2 क्या आएगा, देखिए x1 x2 एंड x3। तो यहाँ पे हम x3 के जगह 0 ले गए हैं यहाँ पे, तो x1 क्या होगा k होगा, x2 हो गया माइनस k एंड यहाँ पे 0 हो गया। तो k के जगह 1 ले जाओ तो क्या आएगा आपको 1 माइनस 1 0 हो गया। जब आप लैम्डा इक्वल्स टू 1 लिए है ना, वहाँ पे कितना आइजन वेक्टर आया है, x1 एंड x2 दो आइजन वेक्टर आ गया है, ठीक है। वहाँ से आपका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 1 इज क्या होगा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 1 इज 2, बिकॉज लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए दो ही आइजन वेक्टर आ गया है, इसलिए इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो हम क्या छोड़ दिए हैं यहाँ पे, देखिए लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए निकलना है, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए क्या होगा यहाँ पे देखिए, सो 2 माइनस 3 होगा, फर्स्ट 2 माइनस लैम्डा है ना, सो 2 माइनस 3 क्या होगा -1 होगा, देन यहाँ पे इसके बाद 1 1 है, देन 1 है, देन 2 माइनस लैम्डा होगा -1, देन यहाँ पे हो गया 1, देन यहाँ पे 0 0, देन 1 माइनस लैम्डा है जो कि 1 माइनस 3 होगा, तो क्या होगा -2, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x1 x2 x3, देन 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका -x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0, देन सेकंड में क्या आएगा x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0, लास्ट में क्या हो गया 2x3 इक्वल्स टू 0। तो x3 का वैल्यू क्या आएगा, x3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x3 के जगह 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या है ना x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0, तो x1 इक्वल्स टू क्या हो गया x2, ठीक है। सो x इक्वल्स टू x1 x2, यहाँ पे आइजन वेक्टर थर्ड आइजन वेक्टर वो है ना, सो x3 लिख दीजिए। तो यहाँ पे x1 इक्वल्स टू x2, मतलब इसके वैल्यू k ले जाओ, क्या आएगा k हो गया एंड यहाँ पे 0, सो k के वैल्यू 1 ले जाओ तो क्या आएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या क्या आपका आइजन वेक्टर क्या है ना 1 1 एंड 3 निकालना है, निकल गया है। एंड x1 क्या आया है यहाँ पे देखिए 1 0 माइनस 1 आया है, 1 0 माइनस 1, एंड x2 आया है क्या 1 माइनस 1 0, एंड x3 आया है आपका 1 1 0, ठीक है। तो यहाँ पे अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है ना, यहाँ पे 1 1 दो रिपीट है यहाँ पे, सो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑल्सो फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए x1 एंड x2 दोनों है आया है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 1 इज आल्सो 2, ठीक है। इसके लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जरूरी नहीं है लिखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही आइजन वेक्टर निकल गया है ना, तो वही रहेगा, ठीक है। मेरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, आइजन वेक्टर क्या है, आइजन वैल्यू कैसे निकलना है, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना हो गया। तो आपको किसी भी पॉइंट से आपको डाउट है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए, मैं आपको सबका डाउट लेके और एक वीडियो में डाल दूँगी, ठीक है। ओके, देन दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, एंड आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।